ہاں ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میں ہلو. ہاں ہاں میں عاشق علی ایم پی سے. اچھا اچھا. ہاں ہاں کہیے عاشق صاحب کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے بڑھیا ہے حضرت. میں مولانا کو فون لگایا تھا. اچھا اچھا میں ابھی تو بول رہا ہوں، بولو کیا اچھا بات ہے؟ ہاں حضرت میں سوال پوچھ رہا تھا آپ سے کیا؟ کہ میں نے آپ کے انٹرنیٹ پر آپ کا ایک آڈیو سنا ہے جس میں اچھا. مولانا فخر الدین صاحب سے گفتگو کا ہے. ہاں اور مولانا فخر الدین صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا موقوف وہی ہے جو تاج الشریعہ کا ہے. اچھا آپ نے فرمایا کہ مفتی غلام محمد خان صاحب کو اگر تم کافر کہتے ہو تو لکھ کر دو ہاں اور مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں. مجھے یہ سننے کے بعد ایسا لگا کہ آپ تاج الشریعہ کی بات سے راضی نہیں ہے. ارے میاں سنو جی تاج الشریعہ کی بات سے راضی نہیں ہے. اپنی زبان اپنے دماغ سے لگاتے کیا بات، کچھ بھی کرتے کیا؟ سنو. ہاں بولیے. سلام جی عمدۃ الخلاف جی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہوں حضور تاج الشریعہ کی جانب سے بیان کیا جانے والا ہر حکم شرع جو ہے نا جی ہمارے سراخوں پر ہے. اچھا اس لیے کہ حکم شرع بیان کرنے کے سلسلے میں الحمدللہ ہاں اہل سنت و جماعت کے دارالفتہ اور علماء اعظام و مفتیان نظام ذوی احترام آج بھی صادق اور امین ہے میاں. اچھا اور اگر کوئی فتویٰ واقع کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط سمجھے جانے لگے نا جی تو اس میں قصور کسی مفتی یا دارالفتہ کا نہیں ہوتا، اچھا بلکہ قصوروار تو وہ لوگ ہیں جو واقعے کے خلاف استفتاء کر کے اپنی مرضی کے موافق فتویٰ حاصل کرتے ہیں. یہاں ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں موجود ہیں. اچھا واقعہ کچھ ہوتا ہے اور جواب کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سائل حقیقت واقع کو بدل دیتا ہے، بدل کر سوال کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کا جواب جی سوال کے مطابق ہی ہوگا نا. ہاں حضرت تو اس میں نہ تو کسی دارالفتہ پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے اور نہ کسی مفتی کو ملزم قرار دے کر اس پر قانون تسلیم کر سکتے ہیں. اچھا حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں اسی طرح واقعے کے خلاف سوال کیا گیا، لیکن تاج الشریعہ نے مفتی غلام محمد خان صاحب کے معاملے میں آج تک ابھی تک کہیں بھی حکم کفر نہیں بتایا، نہ قولن نہ تحریرن. یہ ان کی احتیاط ہے میاں. اچھا جی حضرت. ہاں بہت تاج الشریعہ کو کھیل سمجھتے ہو کیا؟ جنت کی علاج ہے. ہاں جس روز اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، آمین آمین ہماری عمریں گھٹا کر کے ان کو سلامتی عطا فرمائے. میاں تم ہم کو بولتے ہو تو ان کے ہم خلاف چلیں گے؟ بلکہ ایک ماہ قبل آکولہ کا ایک وقت گیا تھا جی حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں. جی حضرت نے گفتگو کرنے کے بعد ایک تحریر حضرت کی خدمت میں آکولہ والوں نے پیش کیا جی جس میں لکھا ہوا تھا کہ مفتی غلام محمد خان صاحب پر حکم کفر باقی ہے. جی اس جملے کو سننے کے بعد تاج الشریعہ ناراض ہو گئے اچھا اور فرمایا اس کو کاٹو. آکولہ والے نے اس جملے کو کاٹا، پھر حضرت نے اپنی دستخط دیا. اچھا دیکھا آپ نے تاج الشریعہ کو کیوں سے بات کروا دیا جس پہ لفظ کفر لکھا ہوا تھا. یہی نہیں بلکہ حضرت کی بارگاہ سے رسالۃ سنین دنیا ایک نکلتا ہے. جی اس کا نومبر 2015 کا ایک رسالت میں کیا جس پہ شمیم نوری نے خود سوال کیا ہے. جی حضرت نے اس کے جواب میں مفتی غلام محمد خان صاحب کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو غلط پرچار سے باز رکھیں. جی دیکھا آپ نے مفتی صاحب کے لیے کیا لکھا کہ غلط پرچار سے اپنے چاہنے والوں کو باز رکھیں. جی یہ ہے تاج الشریعہ کی احتیاط. ہاں وہ تحریر تاج الشریعہ کی خدمت میں آج تک فریقین کی تحریر صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کی گئی بیٹا. اچھا اگر پیش کی جاتی نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. آپ نے یہ جو سمجھا نا کہ حضور تاج الشریعہ کی بات ہاں ہاں سے راضی نہیں ہو. ہاں یہ آپ کی سوچ ہے. اچھا آپ کا تھنکنگ پاور ہے. اچھا کسی کے تھنکنگ پاور پہ کوئی بریک لگا سکتا کیا؟ جی نہیں. آپ چاہے جو سوچ لیں جس میں کسی کا دخل نہیں. بھائی میرا کہنا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات بہت ہی زیادہ مصروف اچھا ہے کہ نہیں بولو تم؟ نہیں ہے حضرت بہت مصروف ہے اور ان پر پوری دنیا سنیت کی ذمہ داری ہے. یہاں جی کوئی ناگپور کی اور صرف بریلی شریف کی ذمہ داری ہے کیا؟ نہیں کی جوابداری ہے کیا؟ نہیں حضرت.
पूरी दुनिया सुन्नत की जिम्मेदारी है, हाँ। इसलिए मेरा कहना यह है कि फरीक़ैन की तहरीर जी यानी मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब की तहरीर, शमीम शमीम नूरी की, दोनों हाँ। की तहरीर है, हाँ दोनों की तहरीरें हाँ। उन मुफ्तियान निज़ाम की बारगाह में पेश की जानी चाहिए जी जिनका तकर्रुर खुद हुजूर ताजुल शरिया फरमा दें। जी जी सही बात है। उसके लिए कुछ हाँ। जिम्मेदार हजरात, हज़रत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब जो मुनाज़िर अहले सुन्नत है, जी हाँ। मुफ्ती रफीक आलम साहब, जी मुफ्ती हबीब यार खान साहब, जी मुफ्ती आकिल साहब, मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब जी। वगैरह ने कभी नागपुर में, कभी गोंदिया, कभी बम्बई, कभी बरेली जाकर के अल्लामा अरशद रज़ा से कहा जी कि हुजूर मुफ्तियान निज़ाम का तकर्रुर फरमाकर फरीक़ैन की तहरीर उनके सुपुर्द की जाए। जी समझे मियां? जी जी हजरत समझे ना। और मुफ्तियान निज़ाम जो फैसला ज़रूरी शरह तहरीर फरमा है उसको ताजुल शरिया की खिदमत में पेश किया जाए, हाँ हाँ फिर हजरत का आखिरी फैसला हो। जी सही बात है। रही बात मौलाना फखरुद्दीन वाले अभी तुमने कह दिया ना, जी हाँ हाँ, रही बात मौलाना फखरुद्दीन से मुनाज़रे की, मेरा कहना है कि अगर मौलाना फखरुद्दीन जी मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को किसी भी एतबार से काफिर कहते हो हाँ तो लिख कर देना। हाँ नहीं सही बात है मुफ्ती ना। गुलाम मोहम्मद खान साहब को काफिर कहता हूँ हाँ हाँ और मैं और तैयार हो जाए, हाँ सही बात है। मुनाज़रा तहरीर कर लें। जी वो फरीक़ैन की तहरीर यानी मौलाना शमीम नूरी की और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब की तहरीर सामने रख करके मुफ्ती साहब का कुफ्र साबित करें, जी मैं उनका ईमान साबित करूंगा। नहीं सही बात है। इधर उधर की बात करने से क्या फायदा मियां? नहीं कोई फायदा नहीं है अपना कोई ज़ाती मामला है, है। अरे शरीयत का मामला है, ईमान और कुफ्र का मामला है, लेकिन मौलाना फखरुद्दीन राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। जी अगर आपके ताल्लुकात हो ना जी आसिफ साहब, जी लगता है कि कुछ आप उनके चाहने वाले दिख रहे मेरे को। नहीं आपके ताल्लुकात हो तो आप उन्हें मुनाज़रे के लिए तैयार करें। जी हजरत। हाँ, मेरे सिर्फ एक ही कहना है कि वो अगर काफिर कहते हैं मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को, जी। उनका कुफ्र साबित करें तहरीर फरीक़ैन के सामने रख करके। जी हाँ हजरत जी हाँ। वो मेरी 32 तारीख देख लो, 33 तारीख देख लो, 30 तारीख देख लो, 29 तारीख देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, उसकी नहीं वो गलत है। बकवास करते खाना खा। वो मैंने सुना मुफ्ती आपको। गुलाम मोहम्मद खान साहब शमीम नूरी की तहरीर सामने रख करके असल नेजा जो है ना इसी बड़ा है, इसी जी। पर गुफ्तगू की जाएगी। जी जी हजरत। मुझे और मेरे को बेटा उम्मीद ही नहीं है अच्छा कि तुम उनको तैयार कर सकोगे। अगर तुम में भी ताकत है तो उनको जी। तैयार कर लो, जी इंशाल्लाह। समझ गए? जी। और ऐसा आड़ा टेढ़ा सवाल मत किया करो, हम राजी नहीं है। अच्छा हजरत। हजरत से राजी कौन नहीं होगा? आप अपना आखिरत खराब करेंगे भैया। अच्छा हजरत मैं एक बात और पूछ रहा था, हाँ, जब आप लोगों ने मुफ्ती साहिबान की तकरीरी के लिए हजरत मियां से मिले, मुलाकात करे, तो उन्होंने क्या कहा था? अरे बाबा तकर्रुरी के लिए मिले, जी जब जाके मिले ना बरेली जाकर, जी तो अल्लामा रज़ा से तो हमारे साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत थे हुजूर अल्लामा सगीर जोखनपुरी साहब, जी सगीर अहमद जोखनपुरी, जी और मुफ्ती आकिल साहब थे, जी मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब थे, जी बरेली वाले जो दारुल इफ्ता के हैं, हाँ और एक दारुल इफ्ता के मुफ्ती मुजफ्फर साहब थे, जी है ना। जी। और हमारे नागपुर से गए भी हमारे कुछ अहबाब थे, जैसे आदिल रिजवी है, इब्राहिम मामू के लड़के हमारे जी। महल्ले में रहते ताजनगर टेके में। अच्छा और एक कलीम अशरफ है, अल्लाह उसको अच्छा रखे, मसला के आला हज़रत का हमदर्द है वो आमीन सुम्मा है, आमीन कलीम अशरफ सुम्मा। अंसारी उसका नाम है, जी जी जो हमेशा सुन्नियत के लिए मरता मिटता है। ये लोग भी हमारे साथ थे। वाह वाह क्या बात है। अल्लामा रज़ा साहब से मुफस्सल गुफ्तगू हुई कि जी शमीम नूरी और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के मामले में जी जिम्मेदार मुफ्तियान निज़ाम जी जो यहाँ मौजूद हैं उनके साथ चंद और मुफ्तियान निज़ाम का इजाफा किया जाए। जी ये मुफ्तियान निज़ाम जो शरीयत का फैसला दें उसको ताजुल शरिया और फिर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब की जी। खिदमत में पेश किया जाए। जी वैसे बात बहुत सारी हुई, अच्छा। असल गुफ्तगू यही है जी जब अल्लाह करे जैसा अल्लामा ज़ियाउल साहब ने कहा ना वैसा जी। तकर्रुर हो जाए, हाँ ताकि शरीयत के मुताबिक सही फैसला हो जाए। और उनको उम्मीद है जी अल्लामा ज़ियाउल इंशाल्लाह करेंगे, तकर्रुर करेंगे। ये और बात है मसरूफ, वो भी बहुत मसरूफ आदमी है ना। जी हाँ हाँ हाँ, ये हमारा हम लोग गए थे बरेली के अंदर थी, हमसे गुफ्तगू हुई है। अच्छा हजरत। हो जाएगा अच्छा हजरत, जब फैसला होना बाकी है तो ताजुल शरिया ने ये कैसे फरमाया कि हमारा फैसला गैर मुंतबिल है? अरे बाबा एक तो तुम कितने क्लास पढ़े हो तुम? मैं तो वालों को गैर मुतबद्दिल कहा है उन्होंने। अच्छा हमारा फैसला गैर मुतबद्दिल है जो तुम कह रहे हो ना। जी हाँ,
वो बात मामला ये है कि हजरत ये फरमाया ना हमारा फैसला गैर मुतबद्दिल है। अच्छा अच्छा तो आप ही बताएं, अच्छा आप बताओ भाई कि वो कौन सा फैसला है जिसमें साफ साफ लफ्जों में ताजुल शरीयत ने फरमाया कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब पर हुक्म कुफ्र है तुम्हारी नजर में कोई फैसला ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई फैसला नहीं है। बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अगर आपके पास नहीं बता सकते हो तो सुने, मेरे पास ताजुल शरीयत की तहरीर है। अच्छा वो भी आईना वालों के यहाँ, नागपुर में आईना वाले में यहाँ जी। हाँ, उनके यहाँ अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब हकम के हैसियत से थे और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब ने जी कुछ वजूहात की बिना पर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा को हकम मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा समझ रहे हो? जी जी हाँ जी हाँ हजरत। अरे सुनो जी तुमको ना हाँ बोलते हैं ना वो बोलते भी यहाँ। एक तो टाइम मेरा ले लिए तुमने, अभी नमाज पढ़ के आए जो मैं तुमने लगा दिया मेरे पीछे सब बातें। लेकिन हुजूर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब का मामला सुनो। जी जी बोलिए हजरत। हाँ, बोलिए बोलिए। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब को हकम मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा तो ताजुल शरिया की ये तहरीर समाज फरमाए। जी बोलिए हजरत। पूरे तुम्हारे दिमाग के जितने दरवाजे हैं ना सब खुल जाएंगे। हाँ हाँ बताइए। ताजुल शरिया देखो, बताए हजरत, बताएं आप पिछले बताएं। कई सालों से मौलाना शमीम अहमद नूरी और गोंदिया के कुछ अहले सुन्नत में तनाज़ो चला रहा है। अच्छा लिख रहे हैं। हाँ 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 शरिया लिख रहे हैं। हाँ इसकी इब्तिदा एक शख्स की नमाज जनाजा से हुई अच्छा जिसकी इमामत मौलाना शमीम अहमद नूरी ने की थी। अच्छा कुछ लोगों का ये इल्जाम था कि मुतवफ़्फ़ा दुर्गा पूजा करता था। अच्छा कुछ लोगों का इल्जाम था, समझे ना? जी जी हाँ इसके फैसले के लिए नागपुर से मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को बुलाया गया। फैसले के लिए बुलाया गया है हाँ हाँ हजरत। ना। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को हजरत लिख रहे हैं, वो भी मैं नहीं बोल रहा आपकी तरफ से, ये नहीं तहरीर है। हाँ हाँ हजरत हाँ, बोलिए। ये ताजुल शरिया लिख रहे हैं कि फैसले के लिए बुलाया गया। अच्छा हाँ ढाई में लोग मुफ्ती गुलाम मोहम्मद को चार्ज लगा रहे थे। अरे तो फैसले के लिए गए हुए थे, उनको बुलाया गया था। ताजुल शरिया खुद लिख रहे हैं। मुफ्ती साहब ने मौलाना शमीम अहमद को तौबा का हुक्म दिया। जी ये हजरत लिख रहे हैं। जी मौलाना ने मुफ्ती साहब के इसरार पर तौबा कर ली, जी मगर उन्होंने इस महफिल में और फिर तहरीरी तौर पर फोन के जरिए वफाक याफ्ता शख्स के कुफ्र का सबूत मांगा जो मुहैया न किया जा सका। जी हजरत लिख रहे हैं। जी हाँ जैसे हजरत के पास बात कही है वैसे वो लिख रहे हैं बेचारे। हाँ 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 अब उनको क्या मालूम कि इब्तिदा में क्या हुई, क्या क्या नहीं हुआ मामला। इंशाअल्लाह वक्त तो पड़ेगा तो बताऊंगा सब आपको। लेकिन हजरत ने जो लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ इस सिलसिले में मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला को खुद नागपुर के चंद जिम्मेदार जी हजरात ने मुफ्ती साहब समेत हकम बनाया। जी समझे? जी हाँ और वह मुश्किलें तमाम एक नशिस्त हुई। अच्छा ये हजरत ने लिखा है। अच्छा अच्छा इसमें भी वफाक याफ्ता शख्स का कुफ्र साबित ना हो सका। जी ठीक। जी नीज मौलाना शमीम अहमद नूरी पर किसी तरह का इल्जाम साबित न हो सका। जी जी हाँ और फिर वाक़े इस नमाज जनाजे की इमामत के ताल्लुक से मौलाना के ऊपर जी। कोई इल्जाम नहीं है। जी फिर नमाज जनाजा पढ़ाने से तौबा का हुक्म क्यों दिया गया, जी ये सवाल अब तक कायम है जी हाँ कि ये इसको लेकर के निज़ा चला आ रहा है, इसी को लेकर के निज़ा चला आ रहा है। यह सब अच्छा। समान है। जी हाँ मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब को जी हकम मानने से रुजू हाँ। कर चुके हैं। अच्छा अच्छा लिहाजा अब उनसे रफ़े निज़ा के लिए दुआए जी। खैर ही की जा सकती है। जरा गौर करो भैया, जी दुआए खैर ही की जा खैरी। सकती है। दुआए खैर किसी काफिर के लिए की जाती क्या जी नहीं नहीं है? ताजुल शरिया जो दुआए खैर फरमाएंगे जी तो मुसलमान के लिए फरमाएंगे ना। जी हाँ हजरत। तो मुफ्ती साहब के लिए फरमा रहे हैं कि उनके लिए दुआए खैर ही की जा खैरी सकती की जा है। सकती अहबाब अहले सुन्नत, और आगे लिखते हैं अहबाब अहले सुन्नत जी गोंदिया हाँ। खसूसन वाबस्तागाने हाँ सिलसिले रज़विया वक़ीदत बंदरगाने हाँ मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मेरी अपील है कि वो लोग अब इस निज़ा को भुलाकर, जी आप इस निज़ा को यानी इस मामले में भूल जाओ, अरे इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम कर लें जी और हक पर कायम रहते हुए हक की तरबीज और इशाअत में एक दूसरे का साथ दें। अच्छा यह हज़रत की तहरीर तहरीर है। लिखते हैं। नीर हाँ मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि अगर जी अब भी इस सिलसिले में कोई इश्तिबा बाकी है जी हाँ तो दोनों तरफ के हजरात बरेली शरीफ आ जाएं या गोंदिया में मेरी हाजिरी का फायदा उठा करके जी इस सिलसिले में अपनी तसल्ली कर लें। हाँ याद रखें कि जो दोनों तरफ की तहरीरें और मुतल्लका बयानात जी हाँ और कैसेट हुज्जत होगी जी और मुतजाद बयानात न सुने जाएंगे अच्छा और ना उन पर गवाही तलब की जाएगी। वस्सलाम फकीर मोहम्मद अख्तर रजा कादरी अजहरी जी हाँ। लो
ये हजरत ताजुशरिया दामदिल्लाह अली की तहरीर में। हाँ हजरत, सुने आप? हाँ सुना ना हजरत, हाँ। सुना। हाँ। अच्छा हजरत, क्या आपने अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब से भी मुलाकात की थी क्या? है? आपने हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब से भी मुलाकात की थी क्या? हाँ भाई, उनसे भी मुलाकात की थी। अच्छा। मेरे हमरा मुफ्ती रफीक आलम साहब थे, मुफ्ती रबिया खान साहब थे, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी थे, आदिल रफी, कलीम अशरफ वगैरह थे, हम सब थे। अच्छा। हमने अंधेरी बम्बई में अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब के जानने वाले के घर पर मुलाकात की। अच्छा। अंधेरी में। जी। हाँ। जी। अपनी हाजिरी की वजह बताई। अच्छा। हुजूर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब और शमीम नूरी के मामले को लेकर नागपुर में और अतराफ के इलाकों में इंतशार फैला हुआ है। अच्छा। हाँ, लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं। हुजूर मामला हल फरमा दे। हाँ सही है, बुजुर्ग है ना वो। जी हजरत, सही बात। हाँ, तो हमने कहा हुजूर मामला हल फरमा दे। हाँ। हजरत ने फरमाया कि मुफ्ती साहब ने मेरे हकम होने से इनकार कर दिया। अच्छा। कौन कह रहा है? अल्लामा हाँ। उन्होंने फरमाया कि हजरत ने मुफ्ती साहब ने मेरे हकम होने से इनकार कर दिया था, जिस पर अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी हमारे साथ थे। उन्होंने फरमाया हाँ हुजूर वो तो दुनिया से जा चुके। अच्छा। हाँ, हम आपको हकम मानते हैं, मामला हल फरमा दे। जी हाँ, सही बात। अल्लामा ने फरमाया मियाँ झगड़ा दफन का है, दफन का। जी। मदरसे की जमीन पर दफन कर दिया। जी। वहाँ से निकालो, मामला हल है। हाँ। वो मामला नहीं, निकालो वहाँ से। हाँ। समझे मियाँ? जी। इसकी आवाज ये भी मैंने वहाँ मेरे चाहने वालों ने ये आवाज सब तेज किया है। अच्छा। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब की अगर सुनना चाहोगे ना, जी, वो भी सुना दूंगा इंशाअल्लाह। जी हजरत, जी हजरत। और फरमाया कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने फरमाया जी, मामला कोई नहीं है, सिर्फ दफन का मामला है। जी हाँ। निकालो वाला जुमला भी तो बता रहा है कि मुफ्ती गुलाम खान साहब कब्र में है। हाँ। 13 साल के बाद भी कब्र में है। हजरत ने फरमाया कि निकालो। जी हाँ हजरत है। और ये कब्र में सलामती भी बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ईमान वाले हैं। हाँ। मेरे ख्याल में शायद अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब को गलत खबर दी गई बाबा, ये मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को जबरदस्ती मदरसे की जमीन पर दफन किया गया। अच्छा। ये गलत खबर थी। हालांकि जी हाँ, जहाँ हजरत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब का मज़ार है ना, जी हजरत, वो मदरसे की मिल्कियत नहीं है। हाँ, बल्कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब की जाती मिल्कियत है। ऐसा क्या हजरत? हाँ, जिसका सबूत मेरे पास है। अच्छा। इस तहरीर को मैं पढ़ता हूँ मैं। जी हाँ, सुने। जी हाँ, उस तहरीर पर जिम्मेदार जी है ना, जिम्मेदार लोग जी हाँ है। अच्छा। ताजुशरिया मुफ्ती अलियार खान साहब जी हाँ, और उनके साथ जो है सबकी दस्तखतें मौजूद हैं। पढ़ता हूँ, सुनो। जी हाँ, निकाले तहरीर निकाल रहा है, निकाले। हाँ, ये वही सुनो मियाँ। जी हाँ, बोलिए। आज मोरखा 28 मार्च 2003 जी सुबह जी हजरत उम्दतुल मुहक्किकीन जी अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब अलैहिर्रहमत रिजवान का इंतकाल हुआ। जी। कौन लिख रहा है? सैयद हुसैनी मियाँ। जी हाँ। कौन लिख रहा है? सैयद हुसैनी मियाँ। ये सैयद हुसैनी साहब है। लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब अलैहिर्रहमत। अलैहिर्रहमत किसको बोलेंगे? मुसलमान के बोलेंगे, काफिर के लिए? नहीं, मुसलमान के लिए हजरत। देखो सैयद हुसैनी लिख रहे, उनका इंतकाल हुआ। जी। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ साहब जी और जनाब अलहाज मुश्ताक अहमद साहब सदर दारुल उलूम नज़िया नागपुर जी हाँ, दीगर जिम्मेदारान मदरसा की तरफ से जी मुत्तफ़क़ा तौर पर हजरत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब अलैहिर्रहमत रिज़वान को बोतली में दफन करने का इत्तेफ़ाक़ हुआ। जी। इस सिलसिले में किसी ने मेरा नाम इस्तेमाल किया जी कि सैयद मोहम्मद हुसैनी ने पुलिस पे कंप्लेंट किया है जी कि हजरत मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमत रिज़वान को, फिर देखो अलैहिर्रहमत रिज़वान लिखा यहाँ पर है। हाँ, अलैहिर्रहमत रिज़वान को बोतली में दफन न करें जी। इस पर मेरी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला से गुफ्तगू हुई। अच्छा। तो हजरत ने मुझसे फरमाया कि तुम एक तहरीर दे दो। जी हाँ, कि मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी है। जी, समझे मियाँ? जी हाँ। तो यकीनन मैंने इसमें कोई दरख्वास्त नहीं दी है। जब बुजुर्गों ने, वो जिम्मेदारों ने जी तय कर लिया तो मैं मुत्तफिक हूँ जी। मेरा कोई एतराज नहीं है। फकत सैयद मोहम्मद हुसैनी जी, समझ रहे हो? जी हाँ जी हाँ सर, ये उनकी तहरीर है जी। और यही नहीं मियाँ, अरे अभी मियाँ 2 साल पहले मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के दामाद का इंतकाल हो गया ना, बाबा शरीफ साहब का जी।
है, तो वो तो मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब को मुसलमान जानते थे ना। जी हाँ, इनकी नजर अगर मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब काफिर थे तो उनकी नमाज जनाजा इन्होंने क्यों पढ़ाया? नहीं सही बात है नवाज रजत। शरीफ साहब की, जी हाँ, नवाज शरीफ की नमाज जनाजा इन्होंने जानबूझ के पढ़ाया। ये खुद काफिर हुए कि नहीं? हुक्म इन पर लौटा कि नहीं? नहीं लौटा इन पर तजदीद ईमान तजदीद बैत है कि नहीं? है है, लेकिन दूसरों के लिए खाने वाले सब। नहीं इनके लिए भी है ना। और सुनो, जी एजेंडा नंबर 2 लिया गया यहाँ, एक और सुनो, जी हाँ एजेंडा नंबर जी 2 लिया गया मदरसे में। जी एक तहरीर और है, हजरत अल्लामा मुफ्ती हबीब यार खां साहब ने तजवीज पेश किया कि जामिअतुर रज़िया बोतली से मुत्तसिल मशरिक और जुनूब की जानिब जी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खां साहब क़िबला की जी हाँ जो 5 एकड़ जमीन जी हाँ है वो जी हाँ जामिअतुर रज़िया की मस्जिद और आमदनी के लिए दुकानें और इशराफ के घरों की कुव्वत के लिहाज से जी ये जमीन इदारे के लिए ज्यादा मुफीद है। हाँ यह ऐसा लिखा गया, किसने मशवरा दिया? ये मुफ्ती हबीब यार अभी क्या? जी हाँ इंदौर वाले मुफ्ती इंदौर वाले। मालवा है ये। अच्छा 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 इसलिए- मुफ्ती मालवा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए हजरत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब से कहा गया जी कि उसका तबादला इस तरह कर लिया जाए कि ये जमीन इदारे की मिल्कियत हो जाए हाँ हाँ और उसके बदले शिमाल मगरिब की जानिब से उसी सूरत की जमीन हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को दे दी जाए। जी अगर वो कबूल कर लें, जी समझे मियाँ? जी हाँ जी हाँ। और अगर ये कबूल कर लें तो रजिस्ट्री के जरिए ये कार्रवाई कर ली जाए। अच्छा इस पर मजलिस तौलियत के उलमा ने शरई तौर पर गौर किया जी हाँ और मुत्तफ़क़ा तौर पर इसकी मंजूरी हुई जी और मजलिस अमल को हिदायत की गई कि इसकी रजिस्ट्री की कार्रवाई की जाए। अच्छा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब क़िबला ने इस तब्दीली को कबूल फरमाया। जी हाँ हजरत। इसके बाद कार्रवाई खत्म हुई। जी हाँ कलाम सैयद कमर अली, अनीस अहमद, सैयद मोहम्मद यूसुफ, सैयद मोहम्मद हुसैनी, जी समझ रहे हो? जी हाँ हजरत। और आगे लिखा है दस्तखत देखो, फकीर मोहम्मद अख्तर रजा खान साहब कादरी अजहरी गुफेर लहू, दूसरी दस्तखत मोहम्मद मुजीब अशरफ साहब रजवी, तीसरी मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब कारंजवी, ये मुफ्ती अकोला है। जी हाँ। ये अकोला मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जी है ना। जी हाँ और उसके बाद मोहम्मद हबीब यार खान साहब, ये मुफ्ती मालवा है। मुफ्ती मालवा। हाँ जी हाँ। उसके बाद गुलाम मोहम्मद खान साहब जी ये 20/10/2098 की बात है ना। जी हाँ 20/10/2098 की बात है। हाँ हाँ हाँ, हाँ मामला ये है, क्या बोलते हो हम अल्लामा से नहीं मिले? अरे अल्लामा हमारे बुजुर्ग है, वहाँ तो अच्छा। मिले और 50 बार मिलेंगे हम। अच्छा अच्छा हाँ, अरे ये आदमी है वो, बहुत जिसे कबीर को छेड़ देते हैं क्या? क्यों नहीं मिलेंगे हम? मिले और इंशाल्लाह उन्होंने अच्छा फैसला दिया। अच्छा उनकी जहन में जो मालूमात जैसी थी बेचारों को वैसे जी। उन्होंने बताया, उनको जी। किसी बताया होगा ना, ये मदरसे की जमीन में दफन करके अब उनको क्या मालूम कि मदरसे की जमीन है कि नहीं है, हाँ इसलिए नजर फरमाया। ठीक है जी। अच्छा मतलब मैं एक बात ये पूछ रहा था कि आपने शमीम नूरी से भी मुलाकात की? अरे यार अब तो यही मेरा टाइम बर्बाद कर दोगे लगता है। हजरत बस। हाँ हाँ। हाँ, उनसे भी मुलाकात किया भाई। जी पहली मुलाकात जो है ना जी नागपाड़ा में हजरत ताजुल शरीयत की क़यामगाह हाँ मुंबई में हुई, अल्लाह के सामने। हाँ मेरे हमरा मुफ्ती रफीक आलम साहब थे, मुफ्ती जी। हबीब यार खान साहब थे, जी हाँ शहीद जोखनपुरी साहब थे, अच्छा। आकिल रजी थे, हाँ। अली मसलब थे। जी शमीम नूरी ने अल्लामा ज़रदा के सामने गोंदिया का वाक़या बताना शुरू किया जी हाँ बताएं हजरत और बताएं। कहा मेरा कोई मामला नहीं था, जी मौलाना इम्तियाज साहब का मामला था, जी हाँ उनका मामला निपट गया और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब ने मुझको खिताब करके फरमाया। जी हाँ क्या फरमाया? शमीम नूरी तुम खड़े जी हो? हाँ मैं खड़ा हो गया। जी शमीम नूरी कहता है जी हाँ, तो मैं खड़ा हो गया। जी मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा तुमने कासिम पठान की काफिर की नमाज जनाजा पढ़ाई है, जी तुम भी तौबा करो। जी हाँ शमीम नूरी ने इतना ही कहा था, सुन जी लिया? हाँ हाँ, इतना ही जुमला इस्तेमाल किया कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा कि तुमने कासिम पठान काफिर की नमाज जनाजा पढ़ाई है, तुम भी हाँ। तौबा करो। तौबा करो। इतना ही उसने कहा। हम्म जब इतना ही कहा तो मैंने उसको कहा रुक। हाँ 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 हाँ, तो ठहर गया, ठहर शमीम गया। नूरी ठहर गया। हाँ हाँ, मैंने शमीम नूरी का पहला इस्तीफा जो मेरे पास था ना, जी हाँ, बरेली शरीफ को जो उसने भेजा था, जी हाँ मैंने निकाला जी हाँ और उसके सामने रख दिया।
हाँ और पूछा कि पहले ये बताओ कि तहरीर तुम्हारी है कि नहीं। हाँ शमीम नूरी ने जी अपनी तहरीर होने का इकरार किया। जी हाँ हाँ, फिर हाँ मैंने उसकी इबारत पढ़ी जी कि एक शख्स ने खड़े होकर गवाही दी कि कासिम पठान दुर्गा पूजा करता था, जी हाँ हिंदुओं के रसूमात में शिरकत करता था। जी जी हाँ ये तुमने लिखा है कि नहीं? हाँ शमीम ने इकरार किया, कहा हाँ मैंने लिखा है। अच्छा फिर मैंने सवाल किया कि ये तहरीर सच्ची है या अभी जो आप जो बोल रहे हो वो सच्चा है? जी हाँ ये मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि तुमने कासिम पठान काफिर की नमाज जनाजा पढ़ाया, अच्छा ये कौन सच्चा है? हाँ ये जो तहरीर जो तुमने की है ये सच्चा है वो? हाँ हाँ दोनों में क्या सच्चा है? हाँ तो शमीम ने कहा अरे यार आप तो मुनाजरा करने लगे। जी मैंने कहा शमीम सुन, हाँ तुमने मुनाजरे की मुझे दावत दी थी जी हाँ दी थी कि नहीं बोलो? हाँ और मकान भी बताया था कि बम्बई या बरेली में मुनाजरा होगा। हाँ जिस पर अल्लामा अज़हर साहब ने उनसे पूछा हाँ कि क्या शमीम तुमने मुनाजरे के लिए कहा था? तो शमीम ने इकरार किया। जी मैंने कहा अल्लामा अज़हर से कहा कि हुजूर आप अपने आदमी मुकर्रर फरमाए, ये मुझसे मुनाजरा कर ले। जी और वो भी सारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी वो गुफ्तगू हुई। जी इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगा बाबू। जी हाँ जी हाँ बात शमीम से मुनाजरे की, जी हाँ तो वो तो कभी भी उस शायद मुनाजरा तहरीर कर ले, जी हाँ वक्त जगह तारीख का ऐलान कर दिया जाए, जी फरीकैन की तहरीर सामने रख ली जाए, जी हाँ मुनाजरा हो जाए। जी भगवान को मालूम हो जाए ना, दूध का दूध पानी पानी का पानी। हाँ हाँ सही बात है सर, हाँ। सही है। फिर दूसरी मुलाकात हमारी और हो गई शमीम से। जी उस वक्त भी मेरे साथ मुफ्ती अलिया खान साहब थे, जी हाँ उसके सामने थे। जी मैंने कहा वहाँ शमीम नागपुर के अंदर है, अभी जलसा होने वाला था नागपुर में। जी हाँ हाँ उस वक्त मैं गया हुआ था, 2 रोज पहले वही था। हाँ तो मैंने उससे मुलाकात किया, ये भी वही मिल गया मेरे को। ये हाँ मालूम हुआ कि बड़ा जगह पे ठहरा है, तो मैं पहुंच गया मुफ्ती अलिया साहब को लेकर के। हाँ और पहुंचने के बाद शमीम नूरी से मैंने कहा यार नागपुर के हालात बहुत खराब है, जी अभी ताजुल शरिया नागपुर तशरीफ लाने वाले हैं, जी हाँ अगर किसी ने आड़ी टेढ़ी तकरीर की जी तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जिसपे शमीम ने जवाब दिया कि मुझे नागपुर प्रोग्राम में बुलाया गया है, जी 35,000 रुपया जी और किराया 5,000 रुपया दिया जा चुका है, जी लेकिन मैं नागपुर नहीं आऊंगा, ये शमीम ने कहा है। जी हाँ हाँ ये नागपुर मैं नहीं हाँ। आऊंगा नहीं आऊंगा। क्योंकि वहाँ के मौलवी नफ्स परस्त हो गए हैं। हाँ मैंने पूछा भैया वो कौन मौलवी है जो नफ्स परस्त हो गए यार? हाँ है तो उन्होंने कहा पहला नाम मौलाना फखरुद्दीन मलिया, जिनके नाम से आपने तो सवाल मेरे से कायम किया ना, पहले ही सवाल, जी हाँ उसी का नाम मौलाना शमीम ने लिया पहला। आए सर। और फिर उनके साथियों का मेरे पास, तो उनके साथियों का भी ले लिया नाम। अच्छा मेरे पास अच्छा उसका पूरा रिकॉर्ड है बाबू, अच्छा अच्छा हजरत। किसका नाम लिया, क्या क्या बोला, पूरा रिकॉर्ड है। जी जी हजरत। अगर आप सुनना चाहें ना तो जी। आप सुन लेना। जी हजरत जी दीन के बारे में तो यहाँ तक उसने कह दिया कि वो क्या गुफ्तगू करेगा। जी आज इस्लामी हुकूमत होती ना तो उसको संसार किया जाता, तो मैं तो एकदम बहुत चक्का रह गया, अच्छा रह गया मैं। जी हाँ बोले या अल्लाह शमीम नूरी बोल रहा है कि संसार किया जाता। हाँ तो मैंने उससे सवाल किया भैया मौलाना फखरुद्दीन क्यों संसार किए जाते यार, क्या बात है? हाँ तो उसने शमीम नूरी ने बरजस्ते का आयत पढ़ी, हाँ अज़ानियतो वज़ानी जी गई। जी इसके बाद अल्लाह की खिदमत में हम गए, वहाँ शमीम से जी साफ लफ्जों में कहा कि हुजूर आप हारून फखरुद्दीन सैयद हुसैनी वगैरह को तकरीर न करने दें। जी हाँ समझ गए? जी हजरत। हाँ हालात सही नहीं है। जिस पर मैंने मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब, मुफ्ती जी। अलिया खान साहब जी और आदिल रिजवी कलीम, मौलाना महबूब खां, जी मौलाना हाँ। गुलाम साबिर जी के सामने अल्लामा अज़हर रज़ा से जी कहा कि इस मामले को हल करने के लिए 10 मुफ्तियान निजाम का तकर्रुर करवा दें। जी हाँ सबके सामने कहा बाबा। जी हाँ वो भी, इसका भी ऑडियो मैंने मुहैया करने बोला है। जी हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा ना, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह, वो भी सुन लेना आकर के। जी हाँ मुझे भी। शमीम नूरी फिर मैंने फरमाने में कहा अल्लामा जितना साहब से, जी फिर मैंने शमीम नूरी से खिताब किया जी जो मौलाना मुफ्तियान निजाम के तकर्रुर के बारे में क्या कहा गया था। जी तो शमीम नूरी ने उसकी तारीफ की। जी तारीफ की। अल्लामा ने बहुत बड़ा काम किया मियाँ कि नागपुर में जो फोन करके फरमा दिया कि फला फला लोगों को तकरीर ना करने दें, जिसकी बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह जी प्रोग्राम जी बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा अल्लाह अच्छा ने
बचा दिया। अपने सुन्नियों के दरमियान इख्तलाफात के अंदर और शिद्दत होती। अच्छा, हो सकता था किसी की गोद खाली हो जाती, किसी का सुहाग लुट जाता। जी जी भाई में जो है फितना फैलाते जो मुल्ला फिर रहे, जी हाँ, इनके बात का क्या जाता था? नहीं, इनका कुछ नहीं होता था। लेकिन वो अल्लामा सिद्दीकी की दूर थी, उन्होंने फोन करके रोका। जी, इसी बम्बई की मुलाकात में मैंने शमीम नूरी से पूछा कि क्या तुम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को काफिर कहते हो क्या? हाँ, तो शमीम नूरी ने जवाब दिया नहीं नहीं। हाँ, फिर मैंने पूछा यार क्या ताजुल शरिया ने काफिर कहा क्या, हाँ, या लिखा क्या? जी, उसने जवाब दिया कि नहीं। तो मैंने कहा यार अब क्या रह गया है, जब नहीं है तो फिर तुम आज तक काफिर नहीं कहे, हाँ, ताजुल शरिया ने काफिर नहीं कहा, ना लिखा, तो फिर मामला क्या रह गया? जी, इतना ही लिख के दो यार, मामला साफ है। जिस पर शमीम नूरी ने कहा कि मौलाना यार हुक्म लौटा ना, तो मैंने कहा यार हुक्म काहे का लौटा, जी, काहे का लौटा हुक्म? जी, तुम्हारी तहरीर से साबित है कि तुमने हजरत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को फैसल तस्लीम किया है। जी, इस पर शमीम नूरी ने झल्ला कर कहा कि मुफ्ती साहब हकम थे, हकम थे, हकम थे, हकम होने से किसने इनकार किया हाँ, है, ऐसा उसने कहा। जिस पर मैंने कहा यार भैया जी, जब मुफ्ती साहब हकम थे तो फिर तुमने उनसे गवाही का मुतालबा कैसे किया यार? जी, है जी, शरीयत में ऐसा कोई जुजिया है क्या जी, कि हकम से गवाही का मुतालबा जायज है? जी, मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है यार कि जी, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जी, फैसला अगर जी, सही फैसला दे जी, तो उसके लिए 2 अजर है, जी, और गौर खौफ करने के बाद जी, फैसला गलत हो जाए तो उसके लिए 1 अजर है। जी हजरत, तुम्हारे कौल तुम्हारी तहरीर से साफ साफ जाहिर है जी, कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब अजर के मुस्ताक है। बोलो बात सही है कि नहीं? नहीं नहीं, सही बात है हजरत, हाँ ऐसा मैंने शमीम नूरी से कहा, बोलो बात जी, सही है कि नहीं? जी, ऐसी बहुत सारी बातें मियाँ जिनके शाहिदीन मेरे पास मौजूद है। हाँ, ये कोई ढकी छिपी बात नहीं बोल रहा हूँ, जी, जितनी बात आपसे कर रहा हूँ ना जी हाँ, तो हाँ दलील के साथ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं इन हजरत, हाँ, तमाम वाकयात का ऑडियो इंशाल्लाह बहुत जी, जल्दी मेरे पास आ जाएगा। ऑडियो भी आके देख लेना बेटा। मुझे, साथ ही साथ एक और पहली मुलाजा फरमा लो। जी जी, बोलिए हजरत, हाँ जी हाँ, हाँ सुन लो, तुमने छेड़ दिया ना, जी जी, तुमने दुखते लगे तो दुखती रख पर तुमने हाथ रख दिया मियाँ। तुमको होश की दवा खा करके काम लेना था। अरे गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, जी, कुछ हमसे सुना होता जी, है। पहले क्यों नहीं पूछे मियाँ? इतने दिन हो गए, नहीं नहीं 13 हजरत, साल 14 साल के बाद। सुनो पहले, जी, बीच बीच में ढप ढप करो बात। जी, जी, साथ ही साथ एक और करीब मुलाजा फरमाए। जी, हाँ सुनो, एक किताब तजल्लियात ताजुल शरिया है। जी हाँ, हाँ हाँ, मौलाना शाहिद साहब का नाम उसके ऊपर लिखा है। जी, एक सफे पर लिखा है ताजुल शरिया के बगदाद में 4 दिन मौलाना अनीस आलम। जी, बगदाद ताजुल शरिया के बगदाद में 4 दिन जी, मौलाना अनीस आलम शिवानी, जी हाँ, सेक्रेटरी इमाम अहमद रजा फाउंडेशन जी, लखनऊ। जी हाँ, उसके बाद उनका नंबर है, जी, क्या नंबर है? अभी निकालो, नंबर निकाले। हाँ अरे 1 मिनट नंबर बताता हूँ। जी हाँ, हाँ यही है, हाँ, 098। जी, हेलो, हाँ भाई कर दिया तो नंबर लीजिए। जी हाँ, नंबर बोलिए हजरत, वो, जी हाँ, नंबर बोलिए, इमाम अहमद रजा फाउंडेशन लखनऊ वाली जो है ना, उनका नंबर 09839645012। जी, इस किताब के सफर नंबर 570 की तहरीर मुलाजा फरमाए। जी हाँ, बोलिए हजरत, है ये कोई जी, मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। जी, जी, मौलाना बरेली शरीफ तो जल्लियात ताजुल शरिया, जी हाँ, उसमें क्या लिखा है देखें। जी, बस इतनी सी बात हुई थी, ये बात पढ़ रहा हूँ मैं। जी हाँ, बोलिए हजरत, बस इतनी सी बात हुई थी जिसे लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि एक खबर और मौसूल हुई, है ना। जी हाँ, इतनी सी बात हुई थी जिसे लोगों ने इतना बढ़ा दिया, जी, एक खबर और मौसूल हुई थी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब नागपुरी साहब के बारे में। जी, मैंने अर्ज की हुजूर, मैंने सुना है कि कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब के उर्स के मौके पर जमशेदपुर में कोई मीटिंग हुई थी, जी, जिसमें हुजूर ने और मुहद्दिस कबीर ने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब के बाइकाट का ऐलान फरमाया है। जी हाँ, इसके जवाब में हजरत ने फरमाया कि उनसे जो इख्तलाफ हुआ था एक मसले के सिलसिले में, वो एक मामूली इख्तलाफ था। सुभान अल्लाह, देखा आपने? जी हाँ, जी हाँ हजरत,
क्या लिखे ताजुल शरिया के बाद शरिया के अंदर जी वो एक मामूली था। जी हाँ फरमा रहे हैं। जी हाँ अगर ईमान कुफ्र का मामला रहता तो मामूली को कहेंगे हजरत क्या? जी नहीं हजरत। मामूली इख्तलाफ था। इस सिलसिले में जमशेदपुर में कोई मीटिंग नहीं हुई जी। इस पूरे मसले की हकीकत को जानने के लिए आप मौलाना शमीम अहमद कानपुरी नूरी से बात कर लीजिए, इजाजत फरमा रहे हैं। जी हाँ वो जो कहें उसे मान लीजिएगा, इसलिए कि मसला उन्हीं से मुताल्लिक है जी। ये ताजुल शरिया के का फरमान जी समझ गए? जी हाँ ये है हमारे ताजुल शरिया का फरमान मियाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मुफ्ती अभी साहब मुफ्ती मालवार अभी चंद रोज पहले जी बम्बई में शमीम नूरी से बात की। जी हाँ जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरा बयान सुना ना। जी हाँ। तो मैंने शमीम अहमद नूरी से पूछा कि यार तुमने मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब को काफिर कहते हो? जी। उसने जवाब दिया नहीं। जी। फिर मैंने सवाल किया क्या ताजुल शरिया ने काफिर कहा जी या लिखा? तो जवाब दिया नहीं जी। बल्कि मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब को हाकम माना है। जी हाँ ये है ताजुल शरिया के फरमान पर अमल। जी। अब अगर कोई इसके खिलाफ बकवास करता है मियाँ जी हाँ तो वो झूठा कहलाएगा, झूठा। जी जी। हाँ ये तो उम्दतुल मुहक्किकीन खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती आज़म महाराज मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब अलैहिर्रहमान रिज़वान की करामत जी हाँ और हुज़ूर ताजुल शरिया दामदिल्लाहुल आली का इंसाफ अच्छा क्या आपके सामने है। इस पर सबका अमल सब अमल करें। जी ये इंसाफ आपके सामने ना, इस पर सब अमल करें। जी मन आजाली वलियन फकत आदम तो बिल हर्ब के मुताबिक अगर किसी ने अल्लाह के वली से दुश्मनी की ना, दुश्मनी की जी। हाँ तो अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। हजराने मसला के आला हजरत से मेरी पुरजोर गुजारिश मियाँ जी आपस में इत्तेहाद बनाए जी। जबरदस्ती कोई भी पान वाला ठेले वाला रेकड़ी वाला जी है कुछ भी मालूम नहीं मुफ्ती ऐसा लग रहा है कि सभी मुफ्ती बन गए हैं, मुफ्ती आजम बन गए। जिसके मुंह में आए जो बकमा चालू जी है ये हमाकत नहीं तो क्या है? ताजुल शरिया क्या फरमाने के मामूली से इख्तिलाफ शमीम नूरी से बात कर लो। अरे हमने शमीम नूरी से बात कर लिया। शमीम नूरी ने कहा नहीं मैं आज तक काफिर नहीं कहता हूँ, ताजुल शरिया ने नहीं कहा। ये कहाँ के निकल गए लोग, अल्लाह रहम करे। अब बेचारे क्या ही लेना जी। उनको भी बरगलाने वाले आए हमारे यहाँ की जो मौलवी है नागपुर के अंदर कुछ खुराफाती जी हाँ वो जबरदस्ती उनको बरगला है और तो इनकी माँ ने दूध पिलाया ना जी हाँ देना मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब काफिर है, हम मुनाज़ा करने तैयार हैं। जी देंगे खुराफाती लोग अच्छा जबरदस्ती लोगों को भड़काना बरगलाना। अरे ताजुल शरिया के पास जाना चाहिए जैसे हम गए, तुम भी चलो हमारे साथ। सही बात है और चल के चलो 10 आदमियों को मुकर्रर करो, हजरत की जिम्मेदारी बहुत है जी। तो हजरत के ऊपर काय को डालते हैं मामले को, हजरत 10 आदमी मुकर्रर कर दे 10 मुफ्तियों को, वो जो लिखे उसको देख रहे हैं हजरत जी हाँ और उसका अपना फायदा दे दें। जी ठीक है जी। अच्छा अच्छा एक सवाल और बता दें हजरत। हेलो अच्छा एक सवाल और बता दें हजरत। ये गोंदिया की मीटिंग सैयद जाहिद अली साहब ने की थी, क्या आपने उनसे भी मुलाकात की? अरे बाबा बहुत लंबी रास्ता है सभी, क्या तुम फोन पे तुमको आके मिल लेना चाहिए ना। हजरत मैं MP से हूँ हजरत। मैं अब आपकी वो आइडियो सुना मैं तो उस पे मेरे को ऐसा मतलब मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब से लेकर जो मसला चल रहा है नागपुर शहर में। तो तुमसे एक ऐसा मालूम है कोई तुम्हारी प्री प्लानिंग है? नहीं हजरत तुमको समझना चाहिए ना, सामने वाला ख्याल करना चाहिए ना। आगे बैठे हो तुमको सब बता देता हूँ मैं। अच्छा फिर सैयद जाहिद अली साहब से मुलाकात की कि देखिए सुनो जी। या हमने उनसे भी सैयद जाहिद अली साहब से मुलाकात की जी। उनका घर यहाँ परसान नगर में है नागपुर में। जी हाँ वहाँ हम जब गए तो मेरे हमारा जो है ना मुनाज़िर अहले सुन्नत जी अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब, मुफ्ती अजीम खान साहब, मुफ्ती आकिल साहब जी और मुफ्ती रफीक आलम साहब जी, मौलाना महबूब खान साहब जी हाँ, और हमारे यहाँ के कलीम अशरफ अंसारी साहब है ना, जी हाँ, हमारे नागपुर में रहते हैं। जी हाँ, ये सब थे मेरे साथ। जी सैयद जाहिद अली साहब ने फरमाया कि जी हाँ, मैंने ही गोंदिया फैसले के लिए मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब को बुलाया था। जी, फैसले के लिए बुलाया था। जी हाँ, हाँ फैसले के लिए बुलाया था। जी, तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब मेरे ही मकान गोंदिया में तशरीफ लाए। जी, गोंदिया के लोग जब जमा थे, मौलाना इम्तियाज, मौलाना शमीम अहमद नूरी भी मौजूद थे वहाँ,
इस मीटिंग का इनेकाद सैयद जाहिद अली साहब ने सिर्फ इसलिए किया था जी कि मौलवी शमीम अहमद मौलवी इम्तियाज को लेकर के लोगों में इंतशार था हाँ कि गोंदिया की सुन्नियत बर्बाद होने का खतरा था, जी क्योंकि ये सैयद जाहिद अली साहब जो है ना, जी हाँ ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चहीते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ ले आते यहाँ तशरीफ लाते रात को जी गोंदिया जाया करते थे, अच्छा इनके मकान में ठहरा करते थे। तो वो सुन्नियत को बचाने के लिए उन्होंने बेचारों ने मीटिंग कायम किया। जी हाँ लेकिन सैयद जाहिद अली साहब को क्या खबर थी हाँ कि यही मीटिंग सुन्नियत और सुन्नियों को और मसलक के आलम के मानने वालों के दरमियान इंतशार और फितना और फसाद का सबब बनेगी। अच्छा उनको थोड़ी मालूम था हाँ मसलक के आलम के मानने वाले गैर जिम्मेदार उलमा जोला को लेकर के मनमानी करेंगे, ये उनको क्या बात बेचारों को। हाँ मीटिंग का आगाज हुआ, सैयद जाहिद अली साहब की जबानी सुनी, उन्हीं की जबानी सुनो आप जी है, मैं बयान कर रहा हूँ। जी हाँ बोलिए। पहले मुफ्ती साहब ने लोगों से दरियाफ्त किया कि मौलाना इम्तियाज साहब के बारे में क्या शिकायत है। जी हाँ जब लोग जमा हो गए ना मीटिंग के अंदर, हाँ हाँ, ये सैयद जाहिद अली साहब ने बयान किया मेरे सामने। अच्छा मुफ्ती साहब ने पूछा लोगों से कि भाई इम्तियाज मौलाना इम्तियाज के बारे में क्या शिकायत है आपको। जी जी तो एक शख्स ने खड़े होकर कहा, बयान दिया कि मौलाना इम्तियाज साहब हमारे इमाम है, लेकिन ये चैन की घड़ी पहनते हैं, टीवी देखते हैं, देवबंदियों के साथ उठते बैठते हैं। जी हाँ मुफ्ती साहब ने उस शख्स को बैठा दिया और फरमाया, मौलाना इम्तियाज साहब खड़े होइए, आप उनसे खिताब किया, खड़े हो जाइए। जी तो मौलाना उन्होंने जो बयान दिया है, जी अभी आपके सामने जो बयान दिया, जी उसकी सफाई पेश करो। जी तो मौलाना इम्तियाज ने कहा, भाई अपनी गलती को मान लिया और कहा कि बोले हुजूर मैं तो चैन की घड़ी पहनता हूँ। हाँ हुजूर मैं चैन की घड़ी पहनता हूँ, जी हाँ मैं वो क्रिकेट देख लेता हूँ। तो हजरत ने फरमाया, उन्हें तंबीह की हाँ और तौबा कराया। तो बेचारे अपनी गलती को मान करके तौबा उन्होंने कर लिया। जी हाँ अब फिर हजरत ने हाजरीन से खिताब किया। जी सुन रहे हो? जी हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, हाजरीन से खिताब किया कि मौलाना शमीम के मुतालिक कुछ कहना है। जी तो एक शख्स खड़ा हुआ, गवाही दी कि मौलाना शमीम ने कासिम पठान की नमाज जनाजा पढ़ाई। जी ये इबारत जो है ना, जी हाँ ये इबारत शमीम ने भी अपने इस्तिफ्ते के अंदर लिखा है। अच्छा हाँ, बेअहदी की थी, अच्छा गवाही दी, जी नमाज जनाजा पढ़ाई। जो दुर्गा पूजा करता था, हिंदुओं के रसूमात में शिरकत करता था, अच्छा उन्हें उसकी नमाज जनाजा, इन्हें जो है उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना था। जी हाँ तो हजरत ने उसे बैठा दिया। अच्छा उसका सवाल सुनने के बाद, इतराज सुनने के बाद उसे बैठा दिया और शमीम नूरी से खिलाफ किया। जी हाँ ये शमीम नूरी जो कह रहे हैं, हाँ। आप खड़े हो जाइए, हाँ और ये जो कह रहे हैं उसकी सफाई पेश करो। हाँ इस पर शमीम ने कहा, मैंने कासिम पठान की नमाज जनाजा उसको मुसलमान जानकर पढ़ाया, जी हाँ इसलिए कि वो मेरा मुक्तदी था, जी मुझे है ना, जी मुझे नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त उसके कुफ्र का इल्म नहीं था, जी हाँ बल्कि बाद में हुआ। जी हाँ हजरत ने फरमाया कि भाई तुमने लाइल्मी में पढ़ाया है, जी हाँ इसलिए तुम पर हुक्म कुफ्र तो नहीं है, जी हाँ बल्कि तौबा कर ले। हाँ तो शमीम नूरी से कहा, मैं कहाँ तौबा करूँ? और ये लोग ये जो बैठे हुए हैं, ये भी तो नमाज जनाजा पढ़े थे, हाँ नमाज जनाजा इन्होंने भी पढ़ी है ना। हाँ हजरत ने फरमाया, भाई ये भी तौबा करेंगे, मगर आप इमाम हैं, इमाम की जिम्मेदारी है, आपको इमामत की जिम्मेदारी आप पर है, आप जिम्मेदार हस्ती, पहले आप तौबा करें। जी शमीम ने तौबा कर ली। हजरत ने सबको आपस में मिला दिया। जी कितनी अच्छी बात हो गई जी हाँ है, सब आपस में मिल गए, शीरो शकर बन गए। अच्छा ये वो मामला नहीं है कि जाहिद अली साहब ने अपने घर पे बुलाते हमको हमारे सामने बयान किया है। अच्छा ये शमीम नूरी ने कहा कि मुझको नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद उसके कुफ्र का इल्म हुआ, पहले नहीं था। अच्छा हाँ, असल मामला ये है बाबू। हाँ अच्छा हजरत, क्या मुफ्ती साहब ने लोगों से तौबा कराई थी जैसा भी आपने बयान किया? मुफ्ती साहब ने तौबा कराई थी। हाँ मुफ्ती साहब ने लोगों से तौबा कराई थी। अरे हाँ, मुफ्ती साहब ने लोगों को भी जो नमाज जनाजा शरीक है ना, नमाज जनाजा में जी जी तो उनको हुक्म शरा बताया। हाँ ये सिर्फ शमीम नूरी को ही नहीं, अच्छा सबूत खुद शमीम नूरी की तहरीर है हाँ ना। मैं हाँ। उसको पढ़ के सुनाता, सुनो। जी हाँ तो शमीम नूरी ने अल्लामा जवाल मुस्तफा साहब के नाम जी 14/2/2001 को लिखा है। 14/2/2001। जी हाँ बोलिए हजरत, हाँ, बताइए 14/2/2001 को लिखा है। जी
اس کی تحریر میں میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. آپ جی ہاں. آپ حرام سے توبہ کیجیے, جی باقی لوگ کفر سے توبہ, جی تجدید ایمان, جی. ایمان و نکاح و بیعت کریں. بس میں نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں توبہ کر لیتا ہوں. یہ رہی شمیم نوری کی تحریر بابو. جی ہاں. لکھتا ہے ہاں جو لوگوں سے بھی توبہ کرایا, تجدید ایمان کرانے کے لیے حکم دیا. جی. کیا بھان کھا کے بولتے کیا کہ صرف شمیم نوری پر حکم لگایا کیا حضرت نے؟ نہیں. اچھا حضرت ایک بات یہ بتاؤ, بات تو صاف صاف ہے, پھر یہ معاملہ بگڑا کیسے؟ اور یہ بتائیں حضرت کہ کیا آپ کے پاس بریلی شریف کے فتوے جس پر مفتی صاحب نے نشاندہی کی ہے, ایسا ہی تاج الشریعہ کی تحریر وغیرہ اگر ہے تو عوام کے درمیان کیوں نہیں لاتے؟ ارے تم تو ایسی بات کر رہے ہو میاں, تو ہوش کی دوا کھا کے بات کرو. ہر بات لانے کی نہیں رہتی ہے. جی. جب ضرورت پڑے تو اس کو بھی لایا جائے گا. بات صاف صاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قاسم پٹھان کے احباب نے شمیم نوری سے پوچھا. جی. کیا قاسم پٹھان کو کافر سمجھتے ہو؟ جی. وہ جب توبہ کر لیا نا اس نے, ہاں, تو وہ رمضان لوگ پوچھ لیے. اچھا اچھا. شمیم نوری, اچھا. تم قاسم پٹھان کو کافر سمجھتے ہو؟ جی ہاں. جس پر شمیم نوری ٹھہر گئے. ہاں. کیونکہ اس وقت قاسم پٹھان کے چاہنے والے جو ہے نا وہاں کے ہاں گھر کے لوگ, ہاں. اب دادا ہاں یہ گھبرا کر بولے کہ نہیں ہاں میں کافر نہیں سمجھتا. ہاں. پھر ان کے احباب نے دوسرا سوال کر لیا کہ بھائی پھر تم نے توبہ کیوں کیا؟ ہاں. جس کا جواب اس کے جواب میں جی. اس نے پھر جواب دیا ہاں. کہ بھائی میں توبہ تو یوں ہی کر لیا تھا, ہاں. ابھی تو سوال کرنے والا ہوں میں. ہاں. اس کے بعد مفتی غلام محمد خان صاحب کے کفر کی گواہی مانگنے لگا. آپ بتاؤ, ایک طرف فیصل بول رہا ہے, ہاں ہاں مان رہا ہے, ہاں. اور اس کے بعد ان سے گواہی مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اچھا. اور آج کا گواہی مانگ رہا ہے. ہاں. اور ہمارے علماء اکرام نے بھی نامعلوم کون سا چیز دیکھا ہے, اللہ جانے بھائی, جی. جس کی بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے گواہی نہیں دیا, مفتی صاحب نے کہا رہے ہیں, مفتی صاحب گواہی کیوں نہیں جی, مفتی صاحب نے فیصلہ لینا جی. ہاں جی. پوری تحریروں سے ثابت ہے. اچھا. تو ان سے مفتی صاحب نے گواہی, مفتی صاحب سے گواہی مانگ رہے ہیں. ہاں. تحریروں میں ہمارے یہاں جی ہاں. ذمہ دار لوگ تحریر میں بول رہے گواہی نہیں ملی, گواہی نہیں دیا. ہاں ہاں. اچھا. اور مفتی غلام محمد خان صاحب فیصل کی حیثیت سے تھے. اچھا. تو فیصل کے لیے گئے, فیصلے کے لیے جب گئے تھے, جی. اس کو حضرت تاج الشریعہ میں بھی ارشاد فرمایا. ابھی آپ نے اس کو پہلے میں بیان کیا نا, ہاں سنایا تھا. ہاں. ہاں, اور شمیم نوری میں فیصل رہا. اچھا. ہاں. شریعہ بھی فیصل کہہ رہے تھے. ہاں. شمیم نوری بھی آج تک فیصل مان رہا ہے ان کو. جی ہاں. اس کی گفتگو بمبئی والی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا نا. جی. ہاں, پھر بھی کہتا ہے قاسم پٹھان کے کفر کا ثبوت نہ مل سکا. قاسم پٹھان کے کفر کا ثبوت کا مطالبہ مفتی غلام محمد خان صاحب سے کیوں ہو رہا بھیا؟ اچھا. ہاں. سنو یہاں. جی. جی. جن بزرگوں کو قاسم پٹھان کے کفر کے ثبوت کی ضرورت ہے نا, جی ہاں, وہ خود تلاش کرے کہ قاسم پٹھان کافر ہے کہ مسلمان. جی. مفتی صاحب کے پاس تو جیسا معاملہ آیا جی, اس کا ویسا حکم سنایا. اچھا. ہاں, جیسا معاملہ آیا تھا نا ویسا حکم سنایا تھا. ہاں, مفتی غلام محمد خان صاحب نے پہلے حرمت سے توبہ کا حکم شمیم نوری کو دیا تھا. اچھا. پھر شمیم نوری اصل واقعے کو بدل کر قاسم پٹھان کو مسلمان بتانے لگا. جی. حالانکہ پہلے کہہ چکا کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت مجھے قاسم پٹھان کے کفر کا علم نہیں تھا. ہاں, بعد میں ہوا. ہاں, انہی کی وجہ سے حکم کفر نہیں تھا, لیکن جی. جب قاسم پٹھان کو مسلمان بتایا تو حکم بدل گیا. ہاں. مفتی غلام محمد خان صاحب نے فرمایا کہ پہلے توبہ سے کام چل گیا تھا. جی. سمجھ رہے ہو؟ جی ہاں حضرت سمجھ رہا ہوں. پہلے توبہ سے کام چل گیا تھا. اب تجدید ایمان, تجدید بیعت, تجدید نکاح کرنا ضروری ہے. جی. یہ حکم ثانی ہے. جی. یہ حکم ثانی ہے شمیم نوری پر. اس لیے لگا کہ جس شخص کے کافر ہونے کا علم اسے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ہوا تھا, جی, اسی شخص کو یہ مسلمان بتانے لگا نا. ہاں ہاں. اب رہی بات بریلی کے فتوے کی, جی, جس پر مفتی غلام محمد خان صاحب نے نشاندہی کی ہے. ہاں, تاج الشریعہ کی تحریریں الحمدللہ ہمارے پاس ہیں. ہاں, اور اس کے عوام کے درمیان, اس کو عوام کے درمیان لانے کا ہاں, آپ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ آپ کا غلط ہے. جی حضرت. حضرت نے خود عوام کو منع فرمایا نہیں ہے تاج الشریعہ نے. اچھا. کہ یہ علماء کا معاملہ ہے. جی.
عوام اس معاملے میں مداخلت نہ کرے. اچھا کر کے مداخلت کر کے ایک دوسرے کو برا نہ کرے, اچھا سر نفرت کی آگ نہ بھڑکائے. جی اس لیے ہم نے بریلی اور بمبئی جا کر کے مفتیان نظام کا تقرر کر کے جی فریقین کی تحریریں انہیں دینے کا حضرت میاں سے مطالبہ کیا. اچھا حضرت میاں مفتیان نظام کے تقرر, حضرت میاں جو ہے نا مفتیان نظام کا تقرر کریں, اچھا شریعت کے مطابق مفتیان نظام جو فیصلہ کریں جی انشاءاللہ اس کو سب مانیں گے. جی حضرت. تو تم بولتے ہو کہ پبلک میں کیوں نہیں, پبلک بلانے کی بات ہے یہ. اچھا حضرت میں یہ میاں اچھا حضرت ایک بات یہ پوچھا تھا, جب شمیم نوری نے واقعے کے خلاف سوال کیا تو مفتی غلام محمد خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا کیا؟ ارے دیا نا بابا. اچھا مفتی صاحب کو کھیل تھے کیا؟ نہیں. مفتی صاحب نے کرم فرمایا, پورے مہاراشٹر کو, آندھرا کو, گجرات کو, چھتیس گڑھ کو, MP کو, سب کو بچایا ہے. اچھا اور شہزادہ اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم امین علیہ رحمۃ رضوان کو دورہ کرایا. اچھا اور انہی کی ذات تھی کہ تاج الشریعہ کو سینکڑوں مرتبہ مہاراشٹر میں بلایا, اچھا میں بلایا. ہاں تو کھیل تھے کیا؟ اور کوئی ایسے کو علی زبر آپ پڑھ رہے تھے کیا؟ ارے علم کا سمندر سے, علم کا سمندر میں. اچھا ہاں نالائق نے یہ واقعے کے خلاف سوال کیا نا جی. ہاں تو اس کی دور اندیشی دیکھو. شمیم نوری نے واقعے کے خلاف جب غلط الزام عائد کیا نا تو مفتی غلام محمد خان صاحب نے ناگپور سے ایک وقت گوندیا بھیجا جی کہ شمیم نوری جو کہہ رہا ہے وہ بیان سچا ہے یا مفتی غلام محمد خان صاحب جی جو فرما رہے ہیں وہ بات سچی ہے. جی اس وقت میں جانے والے کون سے معلوم ہے تم کو؟ نہیں معلوم, بتائیے نا. مولانا فخر الدین تمہارے چاہنے والے کا. اچھا تو تم چاہتے ہو جی. ہاں وقت میں گئے تھے. اور دوسرا نام مولانا عبد الرشید جبل پوری کا. جی. تیسرا نام غلام محمد سرور خان کا. ہاں. چوتھا نام سید عظیم الدین کا, یہ سید شمس الدین صاحب کے لڑکے ہیں. جی. اور پانچواں نام محمد فاروق خان, وہ بھالدار پورے میں جو ہے جی رہتے ہیں. اور ایک تھے احمد شریف. جی. اور گوندیا جانے کے بعد جو مجلس قائم ہوئی اس میں تقریباً میرے حساب سے 26 آدمی گوندیا کے تھے. جی. سب نے مل کر کے تصدیق کی جی. اور مفتی غلام محمد خان صاحب کے بیان کو سچا کہا جی. اور شمیم نوری کے بدلے ہوئے بیان کو جھوٹا کہا. جی. اور سب نے مل کر کے اپنے دستخط دیے. جی. وہ تحریر پڑھ کر سناؤ گے تم کو میں؟ جی ہاں سنائیے نا سر. سنائے سن لو. سنائے. اتنا ٹائم تو تم نے لے لیا ہے, سن لو. جی ہاں. مولوی شمیم احمد کا بیان. مفتی صاحب نے مولوی امتیاز سے توبہ لینے کے بعد جی مولوی شمیم سے کہا کہ تم نے قاسم پٹھان کافر کی نماز پڑھا دی. جی سن رہے ہو؟ جی ہاں جو سن رہا ہوں. یہ شمیم احمد نوری کا بیان ہے. کیا جی. بیان ہے کہ مفتی صاحب نے مولوی امتیاز سے توبہ لینے کے بعد جی مولوی شمیم سے کہا کہ تم نے قاسم پٹھان کافر کی نماز جنازہ پڑھا دی جی. جو حرام ہے. جی ہاں. حرام سے توبہ کرو. جی. پھر مفتی صاحب یعنی مفتی غلام محمد خان صاحب نے مولوی شمیم پر کافر ہونے کا حکم لگا دیا. یہ اس کا جھوٹا بیان. اچھا. شمیم کا. شمیم کا. ہاں. گوندیا والے لکھ کے ابھی دیکھو آگے دیکھو ہاں. لکھ کے دے رہے ہیں. ہاں. پھر ہم نے مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ ہاں. دامت برکاتہم القدسیہ سے سنے ہوئے جملے شرکائے مجلس کے سامنے دہرائے. یعنی جو وقت گیا تھا نا, جی ہاں. یہ وقت نے پہلے شمیم نوری کا بیان بتایا اور اس کے بعد مفتی غلام محمد خان صاحب والے جو جملے تھے جی. یہ دہرائے. جی ہاں. اس طرح سنو کیسے ہیں, وہ جی میں ہاں. صحیح پڑھ رہا ہوں. جی. حضرت مفتی صاحب قبلہ کا بیان. جی ہاں. مفتی صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ مولوی شمیم کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا شکایت ہے. ہاں. ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا مولوی شمیم نے قاسم پٹھان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ہاں. جو درگا پوجا اور دوسرے کفریات میں مبتلا تھا. مفتی صاحب نے اس اعتراض کرنے والے کو بٹھا کر مولوی شمیم سے پوچھا کہ ہاں. آپ کیا کہتے ہیں. مولوی شمیم نے پہلے تو اس کے سنی ہونے اور پیچھے نماز پڑھنے کی بات کہی. پھر یہ کہا کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت مجھ کو اس کا کفر معلوم نہیں تھا, ہاں. بعد میں معلوم ہوا. اچھا. اس پر مفتی صاحب نے فیصلہ کیا کہ تم پر کفر کا حکم تو نہیں ہوگا, حرام سے توبہ کر لیجیے. یہ وقت نے لکھا ہے. اچھا. اس تمام کارروائی کو لوگوں کی موجودگی میں ہی ٹیپ کر لیا گیا تاکہ ثبوت کے طور پر محفوظ رہے. یہ فخر الدین صاحب تھے اس میں. اچھا. ہاں جن کا آپ نام لے رہے ہو نا, جی. وہ تھے اس میں. اچھا. شرکائے مجلس ساکنان گوندیا نے اپنے زبانی بیان کے علاوہ متفقہ طور پر نام و دستخط
मुंतजर है तहरीर बयान दिया हाँ जो झैल में माँ दस्तखत नकल किया जा रहा है। फिर उन्हीं की तहरीर है बेटा, पढ़ रहा हूँ जो मैं सुन। हाँ हाँ सुन रहा हाँ, शोरकाए मजलिस साकिनाने गोंदिया आज मोरखा 21 अगस्त 2001 को जी जी कब 2001 21 अगस्त, हाँ 21 अगस्त 2001। हाँ। क्या चल रहा है 2016 16 15 साल हो गए। हाँ जी। 1 में बात क्या थी, 16 में ये क्या नंगा नाच रहे देखो आप। जी हाँ 2001 को हम तमाम दस्तखत कुनिंदगाने नागपुर जी से आए। जी इस वक्त को अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के जी हाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर जी हाँ। ये बयान दे रहे हैं कि मौलवी शमीम अहमद नूरी का बयान सभी झूठ और बातिल है। हाँ वो साफ झूठ कह रहा है। अच्छा हम इस बात के गवाह हैं कि मुफ्ती साहब किबला का बयान हक और सही है। कौन कह रही है? गोंदिया के मजलिस वाले जो बैठे थे मीटिंग में, हाँ वक्त के सामने लिख के दिया मियाँ, सब तहरीर मेरे पास है। अच्छा। और पिछली मजलिस जो तकरीबन 2 साल कबल सैयद जाहिद अली साहब के मकान पर मौलाना इम्तियाज आलम जी हाँ। और मौलवी शमीम के निज़ा को लेकर हुई थी, जी जिसमें हजरत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब जी हाँ। अली हकम की हैसियत से मदऊ थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। हाँ मेरे अब्बा का लिखा हुआ नहीं है जी नहीं। हाँ, ये गोंदिया के लोगों ने लिखा है वक्त के सामने। जी हाँ। अच्छा हजरत की शिकायत पर मौलवी सुनो मियाँ, पहले जी सुन लो, जी जी बीच बीच में बोलो बस, पहले तहरीर पूरी हो जाए। जी एक शख्स की शिकायत, मौलवी शमीम ने कासिम पठान की नमाज जनाजा पढ़ाई जो दुर्गा पूजा दूसरे कुफरियात में मुब्तला था। जी इस पर मुफ्ती साहब जी ने मौलवी शमीम से पूछा था कि मौलवी शमीम साहब आप क्या कहते हैं? जी हाँ। मौलवी शमीम अहमद ने जी पहले तो उसके सुन्नी होने और पीछे नमाज पढ़ने की बात कही जी हाँ। और फिर ये कहा कि नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त मुझको उसका कुफ्र मालूम नहीं था, जी बाद में मालूम हुआ। जी इस पर मुफ्ती साहब ने फैसला सुनाया कि तुम पर कुफ्र का हुक्म तो नहीं होगा, हुर्मत से तौबा कर लीजिए। जी यही असल वाक़या है जिससे हम तमाम दस्तखत कुनिंदगान चश्मदीद गवाह हैं। जी इसके अलावा मौलवी शमीम अहमद का अब पलटा खाना जी और अपना बयान तब्दील करना जी यकीनन बातिल और शरीर झूठ है। जी समझा मियां? जी हाँ। सुने तहरीर ये? हाँ हाँ सुना ना बोलते हो कि मुफ्ती साहब ने तस्दीक किया कि नहीं किया? हाँ ये पूरी तस्दीक जिम्मेदारी के साथ तहरीर दस्तखत इनके मौजूद है। जी आज ये मुखालिफिन बने हुए हैं। जी। अच्छा हजरत एक बात ये बताए, जब क्या मौलाना फखरुद्दीन साहब और ये मौलाना अब्दुल रशीद ने भी दस्तखत दिए और मुफ्ती साहब के बयान को सच्चा कहा है इन्होंने? अरे मियाँ, मौलाना फखरुद्दीन, मौलाना अब्दुल रशीद, उनके हमरा सब लोगों ने दस्तखत किए। जी हाँ। और तकरीबन 13 साल तक इसी पर कायम रहे। हाँ। अब 13 साल बाद मुखालिफत में आए। जी आप खुद जरा गौर करो मियाँ। जी हाँ। उनकी मुखालिफत से हकीकत बदल जाएगी क्या? नहीं है? नहीं ये मुखालिफत करेंगे, हकीकत बदल जाएगी, हक बातिल हो जाए क्या? जी नहीं है? ईमान कुफ्र हो जाए क्या इनकी मुखालिफत से? जी नहीं नहीं। अरे बुजुर्गों की मार पड़ेगी मियाँ कि खुद जी। बदल जाएंगे, जिनको होश नहीं है। जी हाँ हजरत। हो गया? हो गया बस हजरत, ये बात और मैंने सुना था। अरे क्या है हजरत 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 बस हाँ। थोड़ा सा, मैं उतनी दूर नहीं आ सकता ना हजरत, मैं इसलिए पूरी बात आपसे कर ले रहा हूँ। मैंने सुना था मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब ने तौबा रुजू कर लिया था, जैसे कि इस मामले को मौलाना सैयद हुसैनी साहब बयान करते हैं। अरे मियाँ, आपने अधूरी बात सुनी है सईद हुसैनी से। जी कौन सी तौबा और कैसा रुजू? जी बात दरअसल ये है कि मौलाना सैयद कमर अली साहब और सईद हुसैनी ये दोनों मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब की खिदमत में गए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और अर्ज किया कि हुजूर आपके और आपके जरीमिया के दरमियान कशीदगी जी हाँ। जैसे सुन्नियत को नुकसान हो रहा है। जी हाँ जी हाँ हजरत। तहरीरों से आप जी हाँ। तहरीरों से जी 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 आप दोनों हजरात को अजियत पहुंच रही है। जी हुजूर कितना अच्छा होता जी कि दोनों अपनी अपनी तहरीरों को वापस ले लेते। जी हाँ। ताजु शरिया के सर पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। ये कौन कर रहा है? ये सैयद सैनी मियां। हुसैन साहब। जी हाँ जी हाँ, तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान ने फरमाया ठीक है भाई, हाँ अगर मेरी तहरीर से अजहरिया को अजियत पहुंच रही है तो जी मैं हाँ। इन तहरीरों से रुजू करता हूँ। जी हाँ। शर्त चाहे अजहरिया अपनी तहरीर वापस ले या न ले, जी हाँ। ये है जनाब मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब का रुजू और हुक्म
समझे रुजू जी जो हुक्म शरा बयान फरमाया ना, जिसके गलत ढंग से शरीयत के खिलाफ किसी बुजुर्ग ने जी मशवरा दिया कि ऐसा लिखो, जी ऐसा रुजू कर ले, हाँ वहाँ साहब मामला साफ हो जाएगा। जी इसके मुतालिक मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब ने जो तहरीर फरमाया है, जी हाँ उसकी इबारत मुआला फरमाए मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब की। जी हर राय के इल्जाम की तहकीक हम जरूरी समझते हैं, जी समझे। जी हाँ हजरत मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब लिख रहे हैं, जी इल्जाम की तहकीक जी हम जरूरी समझते हैं। जरूरी समझते हैं। अच्छा हाँ, और साबित हो जाए तो हम हरगिज़ अपने लिए उसको पालने के लिए तैयार नहीं, अच्छा न हम अपनी बारात के हवस में उसको दबाने या आपस में या किसी साहब से बारात मान लेने पर राजी हो सकते हैं। अच्छा ये हमारा मसलक नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज हम तौबा और माफी तलबी के लिए जी तैयार मिलेंगे, बस जी इससे कि हमें सही तौर पर सराहतन बताया जाए कि सराहतन जी बताया जाए कि हमने गलती क्या की है। गलती क्या ये पूरी इबारत मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब की है। जी देखा आपने मुफ्ती गुलाम अहमद साहब का रुजू जी तौबा वाला जी मामला आज तकरीबन 14 साल विसाल को हो गए। जी अभी हाँ। तक किसी साहब ने साफ जी है ना, जी किसी हाँ। साहब ने हाँ साफ बयान नहीं किया कि मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब पर हुक्म कुफर है, हाँ बल्कि कौम को कटवाने के लिए लड़वाने के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं। हाँ रोको मत, जाने दो, हाँ समझ रहे हो क्या। जी हाँ जिससे कुछ लोग ये समझ रहे हैं रोको हाँ जाने न दो, हाँ कुछ लोग क्या समझ रहे हैं हाँ। रोको जाने दो। जाने दो। अरे मैं उन जिम्मेदारों से कहता हूँ यहाँ, हाँ जिसे अब्दुल्ला का खौफ है, जी हाँ है जी हजरत अब्दुल्ला का है, मेरे जुमले पर गौर करना। जी जी हजरत अब्दुल्ला का खौफ है। अगर कोई भी यानी अब्दुल्ला से खौफ खाने वाला कोई भी अगर जी। मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब को काफिर करता है ना, जी हाँ तो फकीर से मुनाजरे के लिए तैयार हो जाए। सराय से मुनाजरा लिखे, जी मुफ्ती गुलाम अहमद खान साहब और शमीम नूरी की तहरीर सामने रख करके मुनाजरा कर ले। जी जो काफिर कहता है वो कौन साबित करे। जी तो मेरा काम है मुफ्ती साहब का ईमान साबित करना। अब रही बात सैयद हुसैनी की, जी सुने जी ताजुल शरीयत के बारे में क्या लिखते हैं। जी हाँ बोलिए फरमाया वो फरमाया तो मालूम नहीं कौन सी मिट्टी से पैदा हुए हैं, अल्लाह जाने। फरमाया हजरत क्या फरमाया। लिखते हैं ताजुल शरीयत के बारे में लिख रहे हैं ये हाँ, हाँ, सैयद हाँ। हुसैनी तुम्हारे। हाँ हाँ रहा हजरत का मामला, इस सिलसिले में मैं हुजूर वाला से ही जी गुजारिश करूंगा कि खुद हुजूर अपनी तहरीर, गुफ्तगू और अपना गोंदिया का सफर, फिर जी। वहाँ की तकरीर और जी। हजरत अपनी आखिरी तवील हम्म, तहरीर को अच्छी तरह से जी फरमाए। जी यकीनन खुद हुजूर इसमें शरई गलतियों का एहसास फरमा लेंगे। तोबा 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 तोबा, ये ताजुल अल्लाह। शरीयत की गलती बताने वाले सैयद हुसैनी कौन होते हैं? जी हाँ हैं? ये कितने गिलास पड़े हुए हैं? ये ताजुल शरीयत की गलती बताएंगे। जी नहीं लेकिन हजरत। देखो लिखे है कि ताजुल शरीयत अपनी गलती का एहसास फरमा लेंगे। हाँ अगर हुजूर को याद ना आए तो हम सैयद शौकत हुसैन साहब के जरिए जी और बराह रास्त भी अपनी जी। तहरीर भेज देंगे। ये है सैयद हुसैनी की तहरीर। मियां अच्छा आपने ये देखा हाँ ताजुल हजरत। शरीयत के लिए सैयद हुसैनी की तहरीर कैसी है? देखा आप हजरत। देख लो जरा सा। जी हाँ देख लो। जी जी लेकिन देखो अब तुम मेरा टाइम ज्यादा मत लो, जी नहीं बहुत हजरत। लोग बैठे हुए हैं। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा हजरत। नूरी के लिए क्या लिखते हैं वो? जी बोलिए। हकीकत ये है कि आप ये सैयद हुसैनी शमीम नूरी क्या लिखते हैं? जी हाँ हकीकत ये है कि आपको मैंने सिर्फ दीन और सुन्नियत की खिदमत की खातिर गोंदिया भेजा था। जी हाँ वहाँ पहुँचते ही आप गांव के मुखिया होने के किरदार करने में मसरूफ हो गए। यहाँ जी तक कि आपने हुजूर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र की बारगाह में गुस्ताखाना तहरीर लिख दी। जी हाँ मेरी गुजारिश है कि जी। आपको गांव के चौधरी बनने के जज्बात से अलग होकर खालिस खादिम दीन और सुन्नियत का किरदार अदा कीजिए। जी और आप मुफ्ती आजम महाराष्ट्र की बारगाह में जो गुस्ताखाना तहरीर लिखी है जी उसको वापस ले लीजिए। मैं आपके मज़कूरा अंदाज़े तहरीर जी। मुफ्ती आजम महाराष्ट्र की तहकीर व तज़लील करने पर आपकी सख्त मजम्मत करता हूँ। ये सैयद हुसैनी लिखते हैं शमीम नूरी को। जी हाँ देखा आपने? देखा 13 साल पहले की तहरीर है और देखा। आज 13 साल बाद दुनिया की लालच में अपनी वाहवाही करने के लिए कहते हैं हाँ कि मैं अपनी तमाम तहरीरों से रुजू करता हूँ। अल्लाह। ऐसे बहुत सारे मामला हैं हुसैनी के, इंशाल्लाह जरूरत पड़ने पर जी। मेरे आम पर लाऊंगा मैं। जी हाँ छोड़ूंगा नहीं। ये है हकीकत। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो वाला रिकॉर्ड जी हाँ जो मैंने मुहैया किया है, बुजुर्गों की तहरीरें, फरीकैन की तहरीर सब है। जी। लेकिन जी। पहले बरेली का हक है।
جی ہاں جو ہمارا مرکز ہے جی ہاں وہاں ہم نے درخواست بھی کی ہے کہ فریقین کی تحریر وہ جی مفتیان نظام کے حوالے کرے جن کا جی ضرور آپ نے فرمایا ہے، جی ہاں اور امید ہے کہ المؤمنون اذا وعد جی جی اور ضرور عمل ہوگا۔ جی اب رکھو میاں فون رکھو، صرف صرف جانکاری چاہتے ہو نا، ہمارا ہاں نظریہ صرف شریعت کے مطابق فیصلہ ہے، جی جی سنت حضرت کی سیرازے کو بکھرنے سے روکنا ہے۔ جی اللہ کرے جتنے مسلک کے حالت کے ماننے والے ہیں نا جی سب ایک ہو جائے، نیک ہو جائے، ہاں آپ کے درمیان بزرگوں کے سبقے میں اتفاق اتحاد قائم ہو جائے۔ آمین آمین ہو جائے گی۔ اچھا ہو گیا نا؟ صرف ایک بات، صرف ایک بات حضرت، ایک بات آخری ایک بات۔ میاں سن اچھا، لیں، جی 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 ہاں، کندھا ہے جی ان کا نام، جی ان کا نام یعنی جی مفتی غلام محمد خان صاحب کا نام، کندھا ہے ان کا نام جی یعنی مفتی غلام محمد خان صاحب کا نام، ان کے ہی نام کے ساتھ یعنی رضا کے ہی نام کے ساتھ جی عظمت کو دیکھیے ان کے لہے مزار کی ہے کیا جی سوال پہ سوال قائم کر رہے ہیں؟ بس صرف ایک بات اور بتا دیں حضرت، اگر خدا نہ خواستہ فقیروں سے نہ الجھو، ان کی دنیا ہی نرالی ہے، حضرت یہ گجری میں رہتے ہیں، نوکر گوہر لٹاتے ہیں بابو، ایک بات کر کے کتنا بولے گا؟ بس آخری ایک بات پوچھ رہا تھا میں آپ سے، ایک بات اور بتا دیں حضرت، اگر خدا نہ خواستہ مفتیان نظام کا تقرر علامہ اسجد رضا نے نہیں کیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بھانگ کھا کر بس سوال کر، جی بھانگ کھا کر سوال کرنا نہیں میاں، اسد بھیا کوئی گٹی گٹے کا کھیل ہے کیا؟ اسد رضا ٹھیک ہے، گٹے کا نام ہے کیا؟ اسد میاں مفتیان نظام کا تقرر کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کیا؟ یہ تو سنیوں کے درمیان اختلافات اور انتشار کو دور کرنے کے لیے ہے، شریف فیصلے کی بات ہے۔ جی کیا آپ کی نظر میں ہمارے ذمہ دار حضرات منصف نہیں ہیں؟ کیا علامہ ضیاء المصطفیٰ یا اسد رضا یہ چاہیں گے یہ قوم لڑتی رہے، سکتی رہے؟ جی ہم کو اس سے کیا مطلب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہرگز ہم کو یہ امید نہیں ہے۔ جی میاں کیا ہندوستان میں اور مدارس نہیں ہے کیا ہم وہاں نہیں سوالات کر سکتے کیا؟ وہاں سے سوالات بھی منگا سکتے، سب کر سکتے، شائع کر سکتے، لیکن نہیں، پہلے مرکز جی آپ سے دوسرے۔ اب رکھو فون میاں، اور آئندہ ایسا سوال کرنا چھوڑ دو، نہ ادھر ادھر کی تو جی نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، جی یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، سمجھ رہا ہے بابو؟ جی جی حضرت بہت میرے دل کا آویز سن، جی جی مصیبہ میرے دل کا دیکھنے والوں ذرا دیکھو، لیے جاتا ہوں لگانا مفتی غلام محمد کا فون آپ رکھ، ٹھیک ہے بابو آ کے ملنا اور لمبی بات کرنا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آؤں گا حضرت، میں ناگپور آؤں گا، ضرور آؤں گا، مہاراشٹر۔